शादी करो, बच्चे करो, घर में तुमने फैमिली को देखनी है, किचन संभालना है। You know, लोग कितना भी बोले, फाइनेंस इज अ वेरी बिग पार्ट इन एनी रिलेशनशिप. शायद मैं अभी माँ बनती तो ज़्यादा अच्छी माँ होती, मुझे ऐसा लग रहा है। बट जितना इम्पोर्टेंट एक लड़की के लिए होता है ना पीरियड्स के बारे में जानना, उतना ही इम्पोर्टेंट एक लड़के के लिए होता है. इवन एज अ वुमेन इट इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट इफ़ यू आर अर्निंग कि आपकी अपनी अलग से सेविंग हो. आई हैव लर्न टू से नो। Because in my 30s, I still don't feel I'm in my 30s. हाँ ना, I still live like I'm a 22-year-old. मतलब चल रही है जिंदगी. हस्बैंड वाइफ बहुत जल्दी झगड़ा भी कर ले, फास्ट फॉरवर्ड मूव भी हो जाते हैं। पेरेंट्स को जब इन्वॉल्व करते हो ना, वो जल्दी सॉर्ट नहीं होता। कंसिडरिंग द पीपल एंड द सर्कल वी आर इन, आई मीन आजकल के ज़माने में उतना नहीं मिलता, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट। I am turning almost 33. And when I was in my 20s, I always had the pressure. I don't know who gave me this timeline, but I wanted to buy a house before I turned 30. I wanted to get married before I turned 30, have kids before I turned 30, have a career well established before I turned 30. Out of this, only marriage is something that I achieved. But remaining, I am still figuring it out. And if you miss that mark, social media makes you feel like you have failed in this society. But that's honestly not the case. Who has given these deadlines? And what if it's the starting line? I remember everyone telling me that 30s is the best year of the life, and I never accepted this. But now, when I'm in my 30s, I 100% and completely believe in this. So, this episode is actually for everyone who's in their 20s or in their 30s who are still trying to figure out, and people in their 20s who are actually scared to turn 30s. Do not forget to keep on watching. If you still haven't subscribed to my YouTube channel, hit that subscribe button and follow us on Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, JioSaavn, Anagami, and keep on watching this episode. Today's guest isn't just rewriting her stories but also inspiring a lot of women here in Dubai. She is Aisha Sheikh and she is the founder of AES, and they have events, they have marketing, they have IT services under, and also she is multi-award winning phonics teacher. But what makes her different and unforgettable? She got married when she was 18. She's almost 34 right now, and she has kids who are almost in their teens. So I called her upon to understand her way of life, how she figured out to start this community of AES along the way, and also to motivate women who are actually watching this video. So keep on watching. And also motivate women who are watching this video that in your 30s it is never too late to live your life again. Welcome to the channel, Aisha. How are you? Thank you so much. I'm fine, thank you. You're looking amazing, by the Thank way. We you are too. twinning. Yes, you're twinning. That's right. Aisha, tell me about yourself. And the theme of the entire podcast is basically redoing your 20s and your 30s. Right. We both have similar but different journey in life. I got married when I was 26. I started my podcast and my content creation journey restarted in my 30s. And when I started, I actually felt like, what am I doing with my life? Right. I have not seen a lot of people around me who actually reinvent themselves in your 30s. But ever since growing up, I have always heard that 30s are the best years of your life. I want to understand your part of story today in the podcast. Managing multiple businesses, getting married when you were 18, having like mashallah grown up kids now. Yeah. How is life for you? How is life now, or how was it before? Everything. Everything. Tell me first. Tell me about your businesses. What all do you tackle all day, and then we get into life and like marriage and everything. Right. Okay. Thank you so much. You've done a good research about me, and I'm so glad about that. So, honestly, about the businesses, AES is a huge firm. Correct. Okay. So, we run multiple businesses, like you said. We are into online tutoring services, IT, software. We do events, branding, marketing. We do podcasts as well. Podcast is kind of the element of marketing Yes. of us. Having said that, I think the best part, I never realized that I would be the first in the UAE, like first of a kind of an influencer in the UAE. So the phonics teacher tag. So in the UAE, I think we are only two people, me and Thomas. So
only education influencers in the UAE. So I didn't know that. Somebody told me, and then I saw, ये बहुत मजे की बात है, मेरे को नहीं पता. I don't know. God had different plans for me, और वो बन गया. If you had to tell me कि आयशा few years back, अगर आप यही अपने लिए सोचते थे, कसम से I would never say this. I think I have got more than my औकात is what I say. बिकॉज एक होता ना कि यार मेरे को ये चाहिए, हम लोग की उतनी औकात नहीं थी कि हम सोच सके अपने लिए कि मेरे लिए ये चाहिए. हमें बस इतना कुछ मिला जो बेसिक आजकल का नॉर्मल लोगों का गर्म पानी अच्छा आ रहा है हमारे लिए, तो यू नो बेसिक वो हमारे लिए बेस्ट था. आज चलो मैंने ईद के लिए नए नए कपड़े पहन लिए, हमारे लिए अच्छी चीज़ थी वो. सो अभी जो मिल रहा है कभी सोचा नहीं सपने में रेशमा, ये बहुत ज़्यादा है हमारे लिए. फिर 18 में जब शादी हुई, हमारे घरों में लड़कियाँ 14, 15, 16 में शादियाँ करती हैं. एज सुन एज यू गेट योर मेच्योरिटी, यू हिट योर प्यूबर्टी, पीरियड्स हो गए तुम्हारे, जल्दी में तुम्हारा रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और शादियाँ हो जाती है. सो हमारे घरों में लड़कियों को उतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता. अभी भी ऐसा ही है? अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, अभी काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं. लेकिन जहाँ पे मैं आती हूँ वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है. शादी करो, बच्चे करो, घर में तुमने फैमिली को देखनी है, किचन संभालना है. ब्रेकफास्ट होते है, लंच को क्या बनना है, लंच को क्या होता है, डिनर को क्या होना है, डिनर में फिर सुबह का टेंशन, फिर वो ही चलता है. सो आई कम फ्रॉम दैट टिपिकल बैकग्राउंड. हैविंग सेड दैट, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच. वी आर नॉट सपोज टू गिव आवर ओन ओपिनियन. कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारे ओपिनियन, तुम चुप रहो, दैट्स द थिंग. एक्चुअली दैट हैपन्स. सो बोल सकते हैं कि हमारा वो जो बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, मैं जहाँ खड़ी हूँ, इट इज़ नॉट इवन अ ड्रीम ऑफ एनी सिंगल वुमेन आउट देयर. अभी चेंज हुआ है, अभी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है. पढ़ा रहे हैं लड़कियों को, आगे पेरेंट्स भी सोच रहे हैं मेरी बच्ची अच्छा पढ़ेगी, उसको अच्छा रिश्ता होगा. रिश्ते का अभी भी चल रहा है वैसे कि अच्छा पढ़ेगी, अच्छा रिश्ता एंड ऑल, बट आई थिंक थिंग्स आर चेंज नाउ, अ बिट चेंजिंग बोल सकते हैं. काफ़ी हद तक अभी रोल मॉडल जैसा देख रहे हैं. जब मैंने शुरू किया था, ओ माय गॉड, पूरा टोर्नाडो वहाँ पे था. किसी को नहीं पसंद, क्या कर रही है, ऐसे क्यों करना है. मैंने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया था तब अपना, मतलब लाइक इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड. तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि पढ़ा देते हैं फ्री में बच्चों को. कोविड के वक्त था वो, फ्री में पढ़ा देते हैं करके. सब लोग बोलने लगे तुमको शो ऑफ करना है, और फिर क्या ये बिजनेसेस, क्या ये वीडियोस बना रही हो, यही. और कितने लोग मेरे जो खास दोस्त थे सब छोड़ के चले गए. इफ़ यू आस्क मी, आयशा तुम्हारे से थे वो? चले, बहुत प्यारे लोग थे. मैं मतलब बोल रही हूँ तुमको, दिल बहुत साफ था उन लोगों का, बट कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, इनसिक्योरिटीज़ हो गए कि वो लोग ना सुनने को तैयार नहीं है. थोड़े लोग समझने लगे मैं चेंज हो गई हूँ विद you know kind of fame or the success that I was getting. Change I हो गई think हूँ. it's more about when you start chasing your dreams now. Yeah. People can't see you being successful, and it's the same story everywhere. अगर आपकी आज जॉब है even in corporate world, and then tomorrow you get something better, there are higher chances that people leave because your lifestyle upgrades. So आज मैं true. मे बी निसान सेंट्रा चला रही हूँ, कल मैं मर्सिडीज बेंज चलाऊंगी, मेरी लाइफस्टाइल अपग्रेड होगी, मेरा इनकम आ गया. तो उन्हें लगता है हम चेंज हो गए, बट एट द एंड वी आर स्टिल द सेम. वी आर स्टिल द सेम. एंड आधी जिंदगी मेरी वही बोलने में चली गई रेशमा कि मैं वही हूँ, चेंज नहीं हुई. It's just that मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, and that's okay. Yeah, that's it. But I would start from wherever I left. Okay, यहाँ तक छोटा था, हम लोग बात नहीं करी थोड़ी टाइम तक. We were occupied. I'll go back and start from the same. You know, अभी वो मैंने बंद कर दिया. I do not chase people anymore. I'm like, इतना करने के बाद, तुम इतने नज़दीक होने के बाद तुमको इतना समझाना पड़ता है, तो फिर खल्ली वाली. एक ही बेस्ट फ्रेंड है मेरा, शौहर, उसके अलावा कोई नहीं. Before we get into deeper into what changed, Aisha, I want to know कि आपने ये AES कौन से साल में स्टार्ट किया था? AES मेरा, ऑनेस्टली आई वॉज अ टीचर बिफोर. हाँ, क्विट In किया Dubai? कोविड में. दुबई में गया टीचर थी मैं, वन ऑफ द ब्रिटिश करिकुलम स्कूल्स, एंड आई वॉज टीचिंग फॉर लोअर ग्रेड्स. एंड देन ड्यूरिंग कोविड व्हाट हैपेंड वाज आई क्विटेड माई जॉब बिकॉज आई वॉज थिंकिंग आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई चिल्ड्रन. ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आई क्विटेड, ऐसा था कि अभी सबका पत्ता कट रहा था उस वक्त. मेरा था मेरा नंबर नेक्स्ट आने वाला है, कुछ अच्छा काम करके मर जाते हैं, यही था मेरा इरादा. वो इसीलिए आई स्टार्टेड टीचिंग फ्री ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस किए पूरा एंटायर कोविड के ईयर में. एंड यूट्यूब पे अपलोड कर रही थी, फेसबुक पे प्रॉपर मूवी के ट्रेलर जैसा आता था, पूरा कुत्ता बिल्ली बंदर सब कुछ बने हुए क्लासेस में. आई कोविड के वक्त 6 years बैक था ना अपना, 2019 में की बात है ये, तब की बात है. सो Around 27, 28, 29? हाँ ना, अभी 34 हूँ मैं, तो 34 minus 6 करना, 28 थी तब. सो आई नेवर इमेजिन दैट इट वुड गिव मी सो मच ऑफ फेम. आई थॉट कुछ अच्छा करते हैं, अल्लाह को मुंह दिखाना है मेरे को, कुछ अच्छा किया है करके. दैट वॉज द ओनली इंटेंशन. नथिंग हैपन टू मी, बट दैट ब्रॉट मी अ लॉट ऑफ फेम.
एंड फ्रॉम देयर एक के बाद एक बिजनेस स्टार्ट हो गए एंड देन आई एम हियर राइट नाउ. सो मैंने कुछ प्लान नहीं किया था. मैं बोल रही हूँ ना, नसीब में सब लिखते गए वैसे, एंड आई गॉट दैट. सो वो वाला मेरा कोविड का फेज था, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें शुरू करी एंड आई एम राइट हियर. So how was it when you were 28 and then you decided कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, नया करना है? तो एक बार ये ख्याल नहीं आया कि काफ़ी लेट हो गया है एज में? Because women in their 30s, especially when they have kids and they get married, they leave aside everything. I have seen my mom. My mom was a housewife. ठीक है, I belong to a family कि हमारे वहाँ लड़कियों की शादी जल्दी नहीं होती है, बट 22-23 is the maximum. बट लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता. So I belong to a very small town village in Gujarat and मेरे डैड भाग आए थे and he settled in Bombay. So then that's why सेम. yeah, so that's why मेरे पास वो थोड़ा सा ओपननेस था. ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद गांव से रिश्ते आने लगे, थिंकिंग मैं उनके साथ सेटल हो जाऊंगी. एंड देन माय डैड सेड इसे और पढ़ाई करनी है. तो पापा के जो चाचा वगैरह ऑल दीज रिलेटिव्स दे स्टार्टेड टू से कि अरे और कैसे पढ़ाओगे, फिर इसके लायक लड़का कहाँ मिलेगा. दैट वाज द क्वेश्चन. But my dad was always a shield. So, alhamdulillah, that has been a very protective environment for me. My mom had all the freedoms in the world. She used to manage her own finances as well. जबकि she did not earn. So, पापा ने कभी उनसे सवाल नहीं किया कि आप पैसे कहाँ उड़ा रहे हो करके, अगर कहीं पे ज़्यादा भी हो जाता है. But the point here becomes कि after a point, she forgot to take care of herself. एक फेशियल कराने भी नहीं जाती थी. तो तब इतना नहीं समझ में आया. बट वुमेन, एंड दिस हैपेंड विथ मी ऑल्सो. 26 आई गॉट मैरिड. फ्यू ईयर्स आई डिड कुछ 3 साल तक, लाइक 27, 28, 29, 30, I forgot myself completely. I forgot to put face mask on. And then I realized कि मेरे husband तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं बोल रहे. But what's happening with me? Right. It's just that I had given up on my life and my dreams. Whereas there was somebody who was supporting me through and through. Yeah. And this became so important to self-reflect. And also growing up with nobody elder to me, like a friend elder to me, it becomes even more difficult. Because I become kind of these girls, these cousins who look upon to me कि दीदी क्या कर रही है, दीदी कैसे कर रही है. Now I know when my sister is 30, she will have a way different perception than what I did. So in all of this, when you were like in your late 20s, did you ever feel कि it's too late for me to do? Like, what am I doing with my life? Is it something that I can risk upon taking a new career? Is it something that I should just relax it and maybe find another job right after COVID? What was your thought तभी? So आप जैसे बोल रहे हो कि लेट 20s के बारे में, मैं बोल रही हूँ आपको 20s के पहले के बारे में, जहाँ पे शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो रहे हैं. एंड आई नो द बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम. आई नो दैट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मच. ऑनेस्टली मेरा भी थोड़ा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सिर्फ यही करना है, अपने शौहर के साथ रहना है. ही वॉज द लव ऑफ माई लाइफ, तो मुझे इन्हीं के साथ करना है. बट समवेयर ही हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ फॉर मी. He belongs to the same community as you? He kind of belongs to the same community. He does. This is arranged marriage, love? It is a love come arranged marriage. It was a love marriage. My parents got to know after the marriage that it was a love marriage. How long were you in relationship before? We were, I think, 2 months. Not a 2 very months. long. Yeah, only 2 months. वो भी वो सांप सीढ़ी वाला, वो कौन सा वो फोन आते थे, you know, the Nokia ones, वो वाले ज़माने के. And then he went to Africa. ओके, तो अफ्रीका में वो 2 साल वहाँ पे थे. एंड देन वी रियलाइज कि नहीं रह पा रहे हैं एक दूसरे के बगैर. दैट्स हाउ ही टोल्ड माई हीज ओन फैमिली कि रिश्ता लेके चले जाओ. इत्तेफाक से ये है, इनके जो जीजा जी हैं, चारों जीजा जी हैं, वो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल है, उसमें से 2 लोग. तो और उससे इत्तेफाक की बात ये है कि वो मेरे डैड के बचपन के फ्रेंड भी है. तो हो गया. So it all aligned. It all aligned. मैं बोल रही हूँ ना, it was just that way. So मेरा honestly I never had that kind of a thing in my late 20s. Late 20s I was like मैं जी रही हूँ. मेरे को ये फीलिंग 18 साल में आई थी कि मेरी बर्बाद हो गई है, बच्चा हो गया. When I was 19 I became a mom. So मुझे ऐसा लग रहा, I was depressed. I don't know how to take up life. मेरे दोस्त कॉलेज जाके पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, प्रॉपर कॉलेजेस में. मैं 12th पास कर दी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. इफ़ एट ऑल माई हस्बैंड हैड नॉट फिल्ड अप ऑल दोज फॉर्म्स फॉर मी, यू नो, मैं मना कर रही थी, मुझे एग्जाम्स नहीं देंगे, मुझे कुछ नहीं करना है. ही वॉज द वन. You had given up on your life. I had given up on my life. That's exactly what it is. He didn't give up on me. If
ही गेव अप तो मैं भी वहीं पे रहती, बिकॉज उन्होंने मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया, मेरे मास्टर्स कंप्लीट किए, मेरा बीएड भी करवाया. ही सेड कोई जॉब तेरे को समझ नहीं आ रहा अभी. आई वॉज अ मेरिट स्टूडेंट बाय द वे. मेरे होर्डिंग्स लगे हुए रहते थे 12th के बोर्ड में 91%. इमेजिन, वैसी टैलेंटेड बच्ची. एंड सडनली आई वॉन्टेड टू गिव अप ऑन माई लाइफ एंड ही डिडंट. सो when I hit that 25, मेरा फर्स्ट जॉब कुछ लगा था 25-26 में दुबई में, तब मेरे को थोड़ा लग रहा था कि वापस जी रही हूँ. बच्चे भी थे पहली वाली फेज में, बिकॉज मेरा वो जो मदरहुड था वो बहुत जल्दी हुआ ना. शायद मैं अभी माँ बनती तो ज़्यादा अच्छी माँ होती, मुझे ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली. बिकॉज अभी रिसोर्सेज है, यू कैन अलाइन एवरीथिंग. आई कैन अफोर्ड दैट बेस्ट लाइफ फॉर माई चिल्ड्रन. तब मैं बहुत इमेच्योर थी, मेरे को दुनिया नहीं मालूम थी. आई डोंट नो कि क्यों साइन अप किया मैंने उस चीज़ पे, बट वो हो गया. लेकिन आई थिंक having my daughter was the best decision of my life, which I got to realize later. She's the elder one? She's the elder one. She's going to be 15 now, inshallah. So it is like we are growing together. वो बोल सकता है ना कि मैं शादी के बाद बख्श के साथ I was growing with him. I was growing with my kids. I don't think it sounds right. Sometimes I feel that I was maybe unfair to my kids. Growing with your kids is not what they want. They want a person who is already mentally stable, matured, बच्चों को संभाल पाए, खुद को संभाल पाए. जो बंदा खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है वो बच्चे को क्या संभालेगा. फिर आपको तब भी फीलिंग क्या आती थी जब आप मतलब अपने दोस्तों को कॉलेज जाते हुए देख रहे हैं? You started your life. How did your friends react? I wasn't in touch with a single friend. I didn't want to show this kind of a life to them. तुम लोग You सब felt अच्छे से embarrassed? I did feel embarrassed कि I was not the way you guys are. Your lifestyle is different. My lifestyle is way too different. And कसम से किसी के साथ में बचपन के जो लोग हैं उनके साथ टच में नहीं हूँ. पर आयशा 18 साल में रिस्पॉन्सिबिलिटी आना बहुत बड़ी बात होती है. Yeah, but You एक still चीज़. figure out like people, okay, partner है अच्छा, that's another thing. Having good in-laws is also another thing. But like you yourself feel so lost. You feel, I don't know. People You feel pleasing. like not even people pleasing. You always, I think, not that I've related to it, but I feel like 18 साल में जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपको समझ में नहीं आता बचपन कहाँ है या Yeah. जवानी कहाँ आ गई. Because in my 30s, I still don't feel I'm in my 30s. हाँ ना. I still live like I'm a 22-year-old. मतलब You चल रही are. है जिंदगी. You are. चल रही है जिंदगी, कोई मेच्योरिटी की एक झलक नहीं है. हाँ, I have taken जालिम, responsibility. मैंने तुमको सोचा तुम जेंजी बच्ची हो करके. प्लीज 30s तो वो तुमने बताया, अब मेरा सोच- मुंह खुला हुआ था वहाँ पे. अब अभी 15 दिन में 33 हो जाऊंगी. माशाल्लाह. इज इट 15 अगस्त अगस्त. बेबी? So 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन. yes, आज़ादी. वाह. बट तभी वो क्या फीलिंग आई थी इन लॉज के साथ बात कैसे करना है, क्योंकि तभी तो हम समझते हैं कि रिलेटिव से बात कैसे करना है. Absolutely. तो वो इन लॉज के सामने वो रिस्पेक्ट देना, आपको जब कोई चाय बनाना या खाना बनाना, हाँ. क्या फीलिंग आई थी तभी? क्या फीलिंग, मैं क्या बोलूँ रेशमा. इट वाज अ मैडनेस. मतलब न्यूक्लियर फैमिली से सीधा जॉइंट फैमिली. बख्श की फैमिली 6 भाई बहन लोग सारे, उनके बच्चे दो और इन लॉज भी सब बड़े, और मेरे हस्बैंड में 9 साल का डिफरेंस है. और तो इमेजिन करो मेरे घर में सारे जितने इनके भाई बहन हैं सब लोग मेरे से सब बहुत बड़े बड़े लोग, और मैं वहाँ पे चली गई हूँ. बच्चे फील हो ऐसे बच्चे की बच्ची तरह ही feel- थी मैं. जो बख्श के जो बहन हैं उनके बच्चे जो हैं वो उनमें और मेरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं भी है. तो खाना बनाना नहीं आता, दुनियादारी नहीं आता, लोगों से कैसे पेश आना नहीं आता है. ओनली मुझे पता था बख्श मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे करती हूँ. एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज लाइक उनकी फैमिली को मैं अच्छा देखना शुरू कर रही हूँ. अच्छा, लेकिन अच्छी बहू, अच्छी बीवी, अच्छी मामी, अच्छी Serial type. चाची, सीरियल टाइप वो ना सबको अच्छे से देखना, वो वाला मैं कर रही थी. बस दैट इज़ हाउ द एंटायर थिंग स्टार्टेड. ओनली बिकॉज आई वॉज लविंग बख्श, आई वॉज डूइंग दैट फॉर हिम, एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट वॉज कमिंग माई लाइफ. I'll tell you something that I don't think I have said it on camera. I don't know, somewhere I should have paid attention to science classes also. There are a lot of things I didn't know, which I think आजकल के 10 साल के बच्चों को सब पता चलता है. I was 6 months pregnant. I didn't know बच्चा कहाँ से आता है. I thought they're going to cut open my tummy और बच्चा आएगा. क्योंकि मेरे नानी, मेरी सास और कोई और साथ में बैठे थे, वो लोग लाइक एक्सरसाइज करते रहो, बिकॉज 6 months तक मैं अफ्रीका में थी. अफ्रीका से सीधा आंध्रा आ गई थी, और यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रही है, आफ्टर डू एक्सरसाइज, थोड़ा नीचे बैठो, ऐसा ऊपर करते रहो, तो था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी. एंड देन आई डोंट नो, सडनली अच्छा पेट काट के तो ही करना है, नॉर्मल डिलीवरी वहाँ से नहीं होती. बोले हम लाइक, एंड दैट वाज द शॉकिंग थिंग. 6 months प्रेगनेंट एंड आई डू नॉट नो बच्चा कहाँ से हो रहा है.
सो दैट इज द थिंग. ओके, सो मैं बहुत ही पता नहीं कैसे मैंने जिंदगी गुजारी होगी, एकदम डम में डम तब तो कोई बेस्ट. इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं थी, सोशल मीडिया कहाँ था, नहीं था ना, सोशल और मीडिया नहीं हम था, इतने दोस्त भी नहीं ओपन थे. भी नहीं थे कि दोस्तों को भी कहाँ समझ आती होगी हाँ. यार. एंड दूसरी बात है, हम इतने ओपन नहीं थे कि अपने पेरेंट्स के साथ एक पीरियड रिलेटेड टॉपिक भी डिस्कस कर सके. वाओ, गुड यू टू स्पोक अबाउट यू नो, दैट. आई रिमेम्बर स्कूल में सिर्फ एक सेशन हुआ था जहाँ लड़कों को अलग बिठा दिया था, लड़कियों को अलग बिठा दिया था, एंड टॉकिंग अबाउट पीरियड्स. बट जितना इम्पोर्टेंट एक लड़की के लिए होता है ना पीरियड्स के बारे में जानना, उतना ही इम्पोर्टेंट एक लड़के के लिए आई होता है. स्वेयर, ट्रू. The thing that we missed out most in education as a woman, I did not know about my hormones. I did not know about these cycles. I did not know about pregnancy. And I think these are the topics you can't be running away from. Even I would say physical intimacy with your partner. Absolutely. All of these emotional baggage कैसे मैं clear करूँ, मैं अपने finances कैसे करूँ, मैं अपना budgeting कैसे करूँ, मुझे नहीं पता भाई. पैसे आते उड़ जाते हैं. तो बेसिकली ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एजुकेशन Yes. एक तरफ से, बट अगर एक वर्कशॉप्स भी ले लेते ना ये, तो हमारी लाइफ अलग होती. I know. स्पेशली एज दीज 90s किड ना, हमने इतना सीखा है. एक्सपीरियंस से आवर सीखा है हमने. जनरेशन इज लर्न. अभी भी सीख ही रहे हैं. Nobody is giving us that information by themselves. Yes. But the generation after us, Oh your God. daughter for example, सब कुछ मालूम है इन लोगों सबको को. पता है. सबको सब कुछ मालूम है, और वो लोग पैदा होते ही बड़े हो गए हैं सारे हाँ. बच्चे. मैं And अभी भी सीख रही हूँ. they are so free to ask you anything they want. Yes. Imagine when I got my first periods, my friends have told me, वो लोग पैड्स चेंज कर रहे थे तो उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसा होता है. और मेरे को 1 month तक मुझे शॉक लगा कि वहाँ से ऐसा क्यों होना चाहिए हमको. हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था. ना. देन मेरी मम्मी एक दिन सीक्रेटली बुलाती है मेरे को, ऐसा होगा ऐसा हाँ. होगा. मैं बोली मुझे मालूम है. तुझे किसने बताया? मैंने बोला दोस्त ने बताया. एंड देन इट वाज अ सीक्रेट मैटर. हो रहा है पीरियड्स, माई फादर शुड नॉट नो, ब्रदर शुड नॉट नो, सीक्रेटली पैड लेके जाओ, सीक्रेटली रखो. अभी आई हैव ब्रोकन दैट थिंग. आई वाज लाइक, वो टैबू हटा दिया है मैंने घर में. डैड से बात करो, नॉट फीलिंग वेल, ओके बख्श भी मुस्कान का ख्याल रखते हैं, हॉट पैक चाहिए, ये चाहिए, तुमको तुमने चेंज कर लिया. I mean, It is not something to be ashamed of. Absolutely. Your parents knowing it's still okay. Like growing up, मेरे भी I think a lot of women हमारे टाइम के they can relate कि पेरेंट्स को हम बता नहीं पाते थे, स्पेशली डैड को कि हाँ, periods आए dad हुए हैं. तो बिल्कुल out Now of league. अभी भी when I'm like a friend to my dad, literally, I'm a little hesitant. Should I say, Dad, I'm on my periods, I don't want to go out? I still don't have the courage to say yeah, that. same. I still don't have it. Like my Same. dad is like mashallah like a friend, but still I don't have the courage to say that. Maybe we were not taught that way. And वो हम लोग ना मिलेनियल्स, हमारा जैसे तुमने बताया, सीख ही रहे, सीखते रहेंगे, मरते दम तक सीखते रहेंगे. तो यही है हमारा. So yep. Was there a point in your early marriage कि you felt very distant from your husband because बच्चा होने के पहले? वो टाइम जब आपकी शादी हो गई, 2 महीने तो बहुत मजे आए होंगे. 3rd मंथ से मे बी स्ट्राइक हुआ होगा कि ये क्या हो रहा है, सारा कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है. हाँ. And then did you have the courage to discuss anything with your family about it? कि what you're feeling? Did you have anyone to talk to? I didn't really have that kind of feeling in the early phase, but बच्चा होने के बाद शायद हुआ है. Things changed after that because पहले में हम लोग अफ्रीका में ही थे दोनों, so उतना कुछ दिक्कत नहीं था. वो अर्ली मैरिज हनीमून टाइप्स में हो गया हमारा. बच्चा पैदा होने के बाद वो मेरे हॉर्मोन्स इन प्लेस नहीं थे. आई डिडंट नो दैट वो हॉर्मोन्स, लाइक यू सेड. इमोशनल बैगेज क्या होता है पता नहीं है. पोस्ट वो Postpartum डिलीवरी, depression. यस, वो वाला बिल्कुल किसी ने बताया नहीं ऐसा होने का है. कुछ हर चीज़ को कुछ नहीं होता, ऐसे ही लगता है, ऐसे यही बोलते हैं. And now it is such a serious topic. People talk about it, but before nobody spoke about it. Even when I delivered my second child, I was 23 that time. Nobody damn spoke about it. I was in 3 months depression. वो जो मेरे को लेबर पेन्स हो रहे थे ना, मुझे 3 months नींद नहीं आ रही थी बिकॉज वो बार बार रिपीट मोड पे हो रहा था. बिकॉज सेकेंड वाला मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था. आई वॉज टेलिंग दैम, nobody is ready to listen. They are like ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है. और वो मुझे डिस्कार्ड कर दिया काइंड ऑफ. बट आई न्यू मेरे को डर लग रहा है. आई वॉज शिवरिंग विद दैट थॉट. इसलिए मैंने सोचा मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए उसके बाद में. वैसे भी मैं मैनेज नहीं कर पाती दूसरा बच्चा, बट वो वाला डर रह गया था उसके लिए. सो ये बोलते ना, ये जो सारी चीज़ें, ये इमोशनल बैगेज, ये सारी चीज़ें मेरे शौहर का उस वक्त नहीं था, बाद में हो गया. ही लॉस्ट हिज ओल्डर ब्रदर, ऑर्गन फेलियर हो गया सारे एक साथ.
तब हम थोड़ा कर्ज में चले गए. And that is when now he had to focus on compensating all that amount that we had spent with it. Everyone in the family invested from his side, and even I kept some of my gold and all of that. अभी हमारी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं ना, तो उनका ध्यान उस तरफ चला गया. तब मेरे को थोड़ा लग रहा था कि यार डिस्टेंस हो गया हम लोग. आई थॉट ऑफ टॉकिंग टू माई पेरेंट्स, कोशिश भी करी बहुत बार, बट यू नो प्रॉब्लम क्या है, वो लोग दिल टेक योर साइड. मे बी हस्बैंड वाइफ सेट भी हो जाएंगे कि वो लोग वही इंटेंशन में रहते हैं, इन्होंने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, तो फिर बाद में वो वाला चीज़ जो है ना, आई हैव नोटिस वो दे डोंट मूव फॉरवर्ड दैट. हस्बैंड वाइफ बहुत जल्दी झगड़ा भी कर ले, फास्ट फॉरवर्ड मूव भी हो जाते हैं. पेरेंट्स को जब इन्वॉल्व करते हो ना, वो जल्दी सॉर्ट नहीं होता वो मैटर. और उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तो आई डील विथ माई थिंग्स माई सेल्फ. एंड ऑनेस्टली आई स्टार्टेड गेटिंग दैट सेम जो शादी वाला नया प्यार है ना, वो एक 7-8 साल से मेरे को वापस मिलना शुरू हो गया वक्त से. देयर वॉज अ गुड फेज इन द मिडल ऑफ आर लाइफ, जब पूरा हमने कंप्लीटली वी वर लाइक फोकस. वो अपना जॉब कर रहे हैं, हम लोग हाँ हेलो हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एज अ हस्बैंड ये कर रहे हैं. बट जो टिपिकल वो लव लाइफ होता है ना, लव जिसको वो रखता है एकदम, एक स्पार्क, एक केमिस्ट्री, वो मिसिंग था. बट इट केम बैक एंड नाउ वी आर लाइक द लव बर्ड्स. लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, डेट्स पे चले जाते हैं. आई एम लिविंग माई 20s, एक्चुअल 20s नाउ इन माई 30s, प्रॉपर डेट्स. बिकॉज शादी हो गई, जल्दी बच्चा हो गया, सब कुछ फास्ट हो गया लाइफ. मेरे को वो मौका नहीं मिला कि पक्ष के साथ बैठ के मैं इंजॉय करूँ. यू नो वो लोग डेट पे चले जाते हैं, वो अब हम कर रहे हैं जब बच्चे बड़े हो गए. You know, when you said about marriage, love marriage हो, arranged marriage हो, शादी की मे बी लव मैरिज में स्टार्टिंग में काफ़ी सारा प्यार रहता है, एंड देन लेटर दिस फेज कम्स व्हेन द reality of life strikes in. Yeah. It's not always about feeling butterflies in your stomach. Yeah. It's not always about like going out on dates and everything. And ये है ना आयशा, हर कोई चीज़ समझ नहीं पाता. Yeah. Just to give a context, when I got married, it was a pure arranged marriage. हमारी सगाई 10 दिन में हो गई. हम फ़ोन पे बात कर रहे थे. He used to stay in India. I was here in Dubai with my family. Okay. वो आए मुझे सिर्फ देखने के लिए. 10 दिन सिर्फ कॉल पे बात हुई थी. हमने कुछ नहीं देखा था. फिर हम दोनों को हाँ था तो सगाई हो गई. ठीक है, इंस्टेंटली. द नेक्स्ट टाइम आई वेंट टू इंडिया, निकाह हो गया. दैट वाज लिटरली इट. दिस वाज 2 times वी मेट, एंड दिस इज द मोस्ट टिपिकल. मेरे दोस्त तो आज तक सोच नहीं पा रहे कि मेरी शादी हो गई. वो जो फ्रेज है ना, जट मंगनी पट ब्याह, लिटरली दैट वाज द थिंग. एंड तभी तो at 26 the biggest thing was loneliness. Okay, I moved to UAE. All my friends were dating. I was never into this dating game, relationship game. तो है ना, एक certain point के बाद बहुत ज़्यादा loneliness hit करने लगी. तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मैं गलत decision ले लूँगी. But like you know, when pairs are made in heaven, literally that's what our religion also teaches. Yes. And I felt it's the right thing. मेरे को कोई दूसरी शक की बात ही नहीं आई थी. तो it just happened. But like now, people are running away from arranged marriages. They do. And I personally feel it's not a great thing. Sometimes अगर आपको प्यार में धोखे मिले तो शादी अरेंज मैरिज में भी धोखे मिलेंगे. And it's normal. I mean it's normal in the sense कि बोल नहीं सकते हो कि लव मैरिज सक्सेसफुल होने वाला है या अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होने वाला है. True. So all of this later what happened is, most difficult part in arranged marriage is understanding how सामने वाला loves you. Yes. The men in general I feel बहुत कम ऐसे होते होंगे जो आपको like भूखे वगैरह लाके हमेशा दे रहे हैं. But like these small calls, these things जो हम इग्नोर कर देते हैं एज विमेन, बिकॉज नहीं इवन पीरियड में आपको वो बैग लाके दे दिया, हॉट पैक लाके दे दिया, वो तो भी बहुत बड़ी बात होती है. पर वो एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ना, वो सोशल मीडिया ने इतना बिगाड़ रखा है. ओह गॉड. कि मेरे भी दिमाग में था कि मेरी शादी होगी, मेरा हस्बैंड होगा या बॉयफ्रेंड होगा या जो भी होगा, वो मुझे ऐसे ट्रीट करेगा, मेरे लिए दरवाजे खोलेगा. ओ माय गॉड, नो. व्हेन द रियलिटी ऑफ लाइफ कम्स इन, नथिंग ऑफ दिस हैपेंस. ट्रू. But how did you manage to bring that spark and that love back in the relationship? Again, I don't think I did anything. It is mostly him. He's the person who puts in a lot of efforts. You know, वो I really wish I could say it that way. Maybe मेरा थोड़ा story अलग ही हो गया हमेशा. He was always there. He's not that रोमांटिक, हाय आयशा आई लव यू आयशा मेरे पे इसमें हो जाएंगे, यू नो वो एक्सप्रेसिव नहीं है. बट आई नो माई हस्बैंड इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. लाइक जैसे मेरे को तकलीफ हो गई ना, चाय पिएगी, चाय चाहिए,
कौन तेरा सर गरम कर रहा है बोल, आके सर दबा दिया. You understand? These are the things he does. And like I said, there was a break in the middle because of the financial crisis we were going through, but we reflected back again and we were meant to do it. So हम लोगों ने वापस काम करना शुरू कर दिया. We talk a lot. टॉकिंग, हाँ, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है रेशमा, हम बहुत बात करते हैं एक पर दूसरे एक के ऊपर. हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में? जितना ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इतना नहीं चाहिए. So Sometimes you're I'll saying- tell you one more thing, like being a social media influencer, there are a lot of people in my DMs. You know, there are some, many of them, they start flirting and all of that. My team, they have a good laugh. We also have a good laugh on that. But I know that my husband knows, he's well aware कि मेरी बीवी का शादी हुए हैं, बच्चे हैं, but you know, people are like that. yeah. हाँ. But at some point तक मैं बता सकती हूँ, उसके बाद he feels a little bit possessive about me. हाँ मत बोल मुझे ऐसे सभी, you know, so I don't want to disturb his mind. But majority जितना भी होता है ना मेरी फैमिली के बारे में, मेरे को जो फीलिंग होते हैं, I think 99% उनको सारा पता होता है. But I don't know if people can take opposite gender, your spouses, your husband can take that much of transparency. In my marriage, it worked for me. मैं बता देती हूँ and then he listens, he's a good listener. So I just want to vent it out. तो मैं बता देती हूँ उनको कि ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे feel भी हो रहा है. There was a time in my life I really had suicidal thoughts. And I told him मेरे को ऐसा feel हो रहा है. And then he's like, let's do this. Let's do this. He takes in efforts to work on that. He's like, नहीं तुम discard कर दो. नहीं, he listens, he appreciates that I have mentioned it to him and he'll start working on that. So that is the whole idea वहाँ पे. We talk a lot. I don't get my work in the middle of my relationship with my husband. I get very less time with him. So I don't sit down talking about the third person. मुझे किसी ने बहुत तकलीफ दिया ना, I'll solve it myself. And only the first thing I do is I put a prayer mat, I start talking to Allah. That's the best thing I can ever do. I've learned this since the time of COVID. अल्लाह के सामने जो मैं बेइंतहा रोती हूँ, बेइंतहा बात करती हूँ, खुशी के आंसू, दुख के आंसू, हर रोज़ ये आज अच्छा चला, ये आज ऐसा हुआ, आई कीप टॉकिंग टू हिम. अगर उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, अब मेरे को लगता है कि बख्श को बता देना चाहिए, बख्श आई एम फीलिंग अ बिट लो, ऐसा हुआ था, मैंने इसको सॉर्ट करने की कोशिश की, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसा है. देन he'll give his suggestion. काफ़ी टाइम वो काम नहीं आते, बड़े वाहियात सजेशन होते हैं. आई एम लाइक पहले हमारा झगड़ा होता था कि सजेशन बड़ा वाहियात दिया है तुमने करके, उसके बाद आई टेक इट, आई सेड उसमें से फिल्टर करके जितना मुझे यूज़ करना है मैं यूज़ कर लेती हूँ. सो अगेन दैट्स द बेस्ट थिंग. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स ही एंड मी डू नॉट सिंक इन. बख्श एंड मी आर टू ऑपोजिट पोल्स. He is the extreme zen, I'm the extremely overactive, hyperactive, सब बोलो. You know, he is not so expressive, I'm overly expressive. कुछ ज़्यादा जाके कूद जाऊँ मैं उनके आंग पे, वैसे वाले. So it is कम्युनिकेशन में भी हम दोनों ने इतना ये किया है कि उनको जितना मेरी चीज़ें लेनी है वो लेते हैं और मुझे जितना उनका लेना है हम ले लेते हैं. There is transparency, we spend a good time, a lot of time together. हमें पता है कि बहुत काम कर गए, जैसे परसों हो गया. Suddenly I was feeling low, I know because of my periods, it's going to come. He said, I want to take you out somewhere, and we went rain chasing. Was crying the whole way because of, I don't know, the past started haunting me suddenly. क्या हो रहा है पता नहीं. He's like, what is happening to you करके. And then उसके बाद बारिश देखा, मैं ठीक हुई, घर आते वक्त मैंने 10 आइसक्रीम खाया, मैं खुश, दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ. So it's efforts from both the sides and that has worked for us. And I think I am living that dating life now. मेरे बच्चे बोलते you guys are cringe. जनजी बच्चे. You guys think you guys are cute? I don't think it should be like this. तो उनको अलग लगते हैं, but yes, we are enjoying this phase of us, बोल सकते हैं. So बाकी लड़कियों को they have not been that lucky enough to get this. I'll say that again. This is not a common story. It happened to me. I'm lucky enough that it happened to me. Allah has been so kind to me that it happened. But I know of my friends struggling with that. I know of my friends struggling to be in that arranged marriage. It requires sacrifice, definitely. Compromise करना है. And आजकल के बच्चे जल्दी compromise नहीं करते ना. फेमिनिस्ट का वर्ड भी मीनिंग भी अलग हो गया, अभी चेंज हो गया काफ़ी हद तक. उनके हिसाब से उन्होंने बदली कर दिया. आई डोंट नो. अब मेरे को एक बार थॉट आता है मैं बोलूँ खुद को फेमिनिस्ट या नहीं बोलूँ, बिकॉज मीनिंग्स इतने सारे वर्जन्स के हो गए हैं उसके अंदर, और डर लगता है लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए. और अब बोल रही हूँ अरेंज मैरिज में शायद वो लड़का ऐसा हो जाए, कंपैटिबिलिटी ना हो. लव मैरिज में कौन सा कंपैटिबिलिटी पूरे मरते दम तक रहता है? नहीं रहता है. आप लोग इसीलिए तो इतनी सारी चेंज करते हो. एंड ऑनेस्टली उस बारे में शायद मैं उतना बता भी नहीं सकती, बिकॉज मेरी शादी जब हो गई मैं ऑटोमेटिकली वो वाले एज ग्रुप में पहुंच गई. मैं 15 साल ज़्यादा ही मैच्योर्ड हो गई लोगों से, क्योंकि मेरे ग्रुप में अभी जो भी मेरे सर्कल, हम 34, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन माई सर्कल आर फ्रॉम 45 to 65.
सारे वैसे दोस्त हैं मेरे, तो दुनियादारी, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस सब उनसे सीख लिया। तो वो लोग वो हैं जिन्होंने अरेंज मैरिजेस करे, लव मैरिजेस भी किए, लेकिन रुके हैं, टिके हैं, अच्छे कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड, लाइफ को उस अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। तो मेरा ये वाला सर्कल नहीं है जो अभी तुम बता रही हो ना, तो बेबी बिकॉज चला गई, मैं आगे बहुत चली You गई got उसकी वजह mature से, very fast. जल्दी हो गया बहुत, Like we both are बचपना नहीं almost मिल same गया, age, but हमारी life काफी different है. या बहुत। I'm still figuring out. I'm still hanging out with people younger to me or same old as me. And उनकी तो शादी भी नहीं हुई आयशा. हाँ। The biggest problem is now becoming बच्चा लेट हो रहा था, but अब तो शादियां भी काफी लेट हो रही है बहुत लोगों लेट की. हो रही है। So with all of this, I think you became so mature so quickly, Masha. But it's a good thing now that you have rediscovered your life and that's all it is about. अगर मैं आयशा को AES के बिना देखूं, अगर उन्होंने कोविड में अगर वो स्टेप नहीं लिया होता, तो what would your life have been right now? Same dull old life, या no energy, मतलब आपका चल रहा है, मैं भी marriage ट्यूशन टीचर रहती शायद मैं पर वो खाली। कितना ना, मतलब सोशलाइजिंग भी एक तो एस्पेक्ट होता है, बिकॉज यू सेड दैट यू आर अ लिटिल आउटगोइंग पर्सन, यू आर एक्सट्रीम इन इमोशंस एंड एवरीथिंग, ये यू नीड बाद टू गेट में दैट आउट. रेशमा, ये बाद में आई वाज अ बिग टाइम बिकॉज इंट्रोवर्ट आप पहले। हो गए थे ना, जब लोगों को समझ में आता है इन देयर 20s व्हेन दे डिस्कवर कि आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, हाँ। यू लाइक्ड एवरीथिंग एंड यू गॉट मैरिड एंड यू आर डन. सो वो उस चीज की वजह से आपको समझ में नहीं आया. Like for me also in college, I was outgoing, but I was still not that great. I was low confident kid. ऐसे सबको दिखता था कि अरे रेशमा बहुत confident, but मैं नहीं थी. टॉम बॉयश ऐसा लग रहा था मेरे को। टॉम मैं बॉयश नहीं टॉम थी? बॉयश भी थी, पर I was so basically my struggle was with weight. I was always obese. ठीक है, बचपन से पता नहीं क्या है मेरे खून में. I've always been overweight. I lose weight if I don't care of my diet, I gain weight back. ऐसा. Okay. तो I've had a journey of weight loss. तभी when I actually discovered myself, I got into content creation. I was doing very good in India. My parents didn't see that as a career because I was, alhamdulillah, very well educated and everything. And they didn't see that as a career. पापा यहाँ थे दुबई में, बोला बेटा बहुत हो गए तुमने आवारागर्दी, वापस आ जाओ टाइप्स. तो मैं यहाँ आ गई थी. माई लाइफ कम्प्लीटली शैटर्ड. आई गेव अप ऑन माई सेल्फ कम्प्लीटली. मैरिज के लिए पहले यामिन इज माई हस्बैंड्स नेम, उनके पहले एक आध लड़का दिखाया था, पसंद नहीं आया, देन वाज यामिन एंड इट वाज सॉर्टेड. 3 साल तक तो फिगर आउट करने ले गए कि मैं शादी भी हो गई है मेरी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा. एंड देन लेटर लाइक वंस, अल्हम्दुलिल्लाह, वी वर आल्सो स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली. आवर पेरेंट्स आर वेल सेटल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, बट वी बोथ डिडंट हैव एनी सेविंग. हम आते थी सैलरी उड़ाते थे, आते थे उड़ाते थे. हाउ ओल्ड इज ही? सेम एज? 2 साल बड़ा है मुझसे से. हाँ, तो वी आर ऑलमोस्ट ग्रोइंग टुगेदर. सो वो समझ में नहीं आता फाइनेंस कैसे मैनेज करे, सेविंग कैसे करे. हर बार दिमाग में सेविंग सेविंग सेविंग, क्योंकि सिखाया वही था कि सेव करना है. कैसे सेव करना है वो किसी ने नहीं बताया मेरे को. कैसे प्लानिंग करूं मैं, मेरे को नहीं बताया, ना कॉलेज में ना घर पे. कोई ये बात करता ही नहीं है. फिगर आउट करना पड़ा कैसे करूं, लोगों से बात करके, सोशल मीडिया से सीख के. एंड देन व्हेन फाइनेंशियली वी बिकेम ओके ना, तब वो वापस रीलिव करने का एक जोश आया. हाँ, कि हम दोनों का रिलेशनशिप है, स्पार्क है. यू नो, लोग कितना भी बोले, फाइनेंस इज अ वेरी बिग पार्ट इन एनी रिलेशनशिप. आई डोंट से यू हैव टू बी एक्सट्रीमली रिच, बट एक सुखी लाइफ जीने के लिए, भले आप ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हो, भले आप शक्लन से लेके आप 1 किलो टमाटर लेके खा रहे हो, व्हाटएवर, बट फाइनेंशियली सिक्योर होना is super important in any relationship. Very rightly you said. can't be thinking घर पे आके अरे पैसे कैसे बचाऊं, अरे मेरे पास सिर्फ 2000 दिरहम अकाउंट में. नो, बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी. भले ओवर मत रखो, बट मैं 1 साल तक बिना पैसे के जी सकूं, इतना पैसा होना जरूरी. एंड तब वो सुकून आता है एक रिश्ते में. एब्सोल्युटली. एंड दैट आई थिंक 20s में भी ना आपको समझ नहीं आती ये चीज़ें. आप तो बोल रहे हो ना कि 30s का बेनिफिट है. 30s का बेनिफिट यही है. मेरे को भी किसी ने नहीं सिखाया, हम दोनों को किसी ने नहीं सिखाया. इट इज़ जस्ट सीखते गए हम लोग. व्हेन यू हैव अ टीम, नो, तब तुमको डर लगने लगता है. जब तुम अकेले तक कर रहे हो ना, तब तक तुमको टेंशन नहीं है. जब तुम्हारे पास टीम आता है ना, तुम्हें पता है मंथ के एंडिंग में इन सबको देना है. अगर ये लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तब तुमको वो एक अंदर से एक डर आ जाता है. तभी तुम्हारे लिए वो है ना, एक समवेयर यू हैव, देयर शुड बी समथिंग दैट शुड पुश यू. फॉर मी इट वाज माय टीम. I started savings because of all of them, because
काफ़ी लोग एंटायरली हमारे कंपनी के ऊपर जी रहे हैं, काफ़ी लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं हमारे साथ. बट आई शुड हैव नो दैट टाइम्स आई हैव नॉट टेकन सैलरी फॉर माई सेल्फ बट आई पेड इट टू माई टीम. सो जब इतने सारे लोग हैं तो तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली वो पुश हो जाता है. एंड 30s इज़ द टाइम आई बिलीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के ऊपर ना बहुत इंपॉर्टेंस होना चाहिए. Very true. वॉट यू सेड इज़ ट्रू एंड आई बिलोंग टू दैट उल्टा काइंड ऑफ अ पर्सन. मुझे खैरात करना बहुत अच्छा लगता था. सो कोविड में वही आइडिया था कि मेरे पास जितना था मैंने दे दिया था काफ़ी लोगों को. सो जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया ना, जैसे फाउंडर बन गई, यू नो, सडनली तुम्हारे पर निकलते हैं आई एम अ फाउंडर बेब्स. और क्या है, मैंने 3 महीने में से 1500 ही कमाया था. 3 महीने में 1500, उसमें भी काफ़ी सारे खर्चे चले गए. एंड देन सेविंग्स मैंने सब उड़ा दिए थे. देयर वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस दैट हैपेंड इन 2021 and I couldn't keep the company. Completely zero नहीं, minus पे आई थी. So I had sold my daughter's diamond studs to get this I think 72,000 कुछ. और मेरे को मेरी फैमिली, काफ़ी सारी फैमिलीज मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, नॉट सैलरी बेसिस पे बट आई लुक आफ्टर देम. एंड टीम में सिर्फ 2 लोग थे उस वक्त, तो उनको पैसे देने थे. सो दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज्ड कि अगर तुमको किसी को पैसे देने भी है ना, तुम्हारे पास होने चाहिए. आई वॉज अ पर्सन हु डिडंट केयर मच अबाउट मनी. लोगों को मैं बोलती क्या पैसे पैसे, कोई बंदा अगर सामने से पैसे बात करता ना, कितना कमर्शियल है यार, बार बार ऐसे बात करता है. आई डोंट लाइक पीपल ऑफ दैट सॉर्ट. बट दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज अगर मेरे पास पैसे होते, मैंने प्रॉपरली उसको केयर किए होते, आज के दिन मेरे को ये नौबत नहीं आती. So even if you want to give it to someone or you want to have a good life for yourself, a secured life, you need to have money for yourself. You need And for good relationship. yes. And एक नहीं, multiple streams होंगे तो ज़्यादा अच्छा है. एक स्ट्रीम वो कभी बंद पड़े, क्या हो जाए पता नहीं. जैसे कोविड में आया, काफ़ी सारे जिसके एक ही स्ट्रीम थे वो लिटरली उनका हालत हो गया था. बट जिन्होंने मल्टीपल किया था they could sustain. So that was another lesson for me. COVID taught me that I have multiple streams. So that is how I have those multiple businesses. And I'm so glad to know about you, Reshma. Seriously. But वो भी लग रहा है कि दोनों में इतना डिफरेंस नहीं, बट जिंदगी की दोनों की कितनी अलग है. बहुत अलग है. बहुत अलग है हम दोनों की जिंदगी. You were saying, रेशमा, कि तुम्हें ओबेसिटी की वजह से तुमको बुली किया गया था. Obviously. For me, because I was underweight. I was 43 kilos. 35 से 43 के बीच में मेरा वेट होता था. सो आई वॉज सो थिन. मेरे यहाँ पे ना तुम पानी डालोगे तो मछलियाँ भी तैरने लगी, इतनी पतली. एंड आई वॉज लाइक अ माल न्यूट्रिशन पर्सन. सो मेरी पूरी वॉल्यूम हेयर का इतना होता था. सो यू कैन लिटरली सी माई स्कैल्प, इतना गंदा हालत हुआ था मेरा. सो आई हैव बीन थ्रू दैट फेज ऑफ लाइफ वेर आई वॉज बुलीड टू द एक्सट्रीम लेवल. एंड ऐसे भी नहीं कि बाहर वाले, इट इज़ फ्रॉम द होम ओनली. घर वालों ने बुली किया, वो बोलते हैं ना, वो वाला फेज मैंने पूरा देखा है. एंड टू अ पॉइंट वेयर वी हैव रिच्ड, आई बिकेम अ रेबेल पर्सन लिटरली. सो अगर वो मुझे बोलोगे ना बचपन कितना अच्छा था, आई वुड से नो, because I was with my nani nana for good 3 years of my life because my sister got she was born immediately, so my mom couldn't manage. She got married at 16, my mom. इमेजिन, उनका लाइफ तो मेरे से जल्दी शुरू हो गया. शी शिफ्टेड टू गोवा, तो अकेले मैनेज करने नहीं हो रहा था, तो मुझे यहाँ भेज दिया. आई थॉट मेरी नानी नाना मेरे अम्मी अब्बू है. So when my dad came once to pick me up when I was 4, I couldn't recognize him and he was like, मेरी बच्ची मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, खींच के लेके चले गोवा. For me, the entire childhood, I never spoke to them, but I know that trauma. I felt that I have been separated from my parents and suddenly these two people are my parents and I cannot stay with them. I'm sure they must have tried their level best कि जेल इन करे, सब कुछ करे. मेरे लिए ना नफरत हो गई थी. मैं वेट करती थी नानी नाना कब आएंगे मेरे पास. सो दे वर द फर्स्ट लव, दे वर माई फर्स्ट पेरेंट्स काइंड ऑफ. एंड आई ओनली आफ्टर आई थिंक मैरिज आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई पेरेंट्स. जब मैं खुद माँ बनी ना, then I started realizing कि I was a bit mean to my own parents. So I started accepting them. So that is how the thing happened over there. And the missing concept in my life was love. So after my nani nana, I think that kind of love I started developing on my husband. So iski wajah, that changed my life, and that rebel person suddenly changed into the zen. Yeah. Okay, so when A started, COVID के time पे you were almost 30s. Did you think कि जब सब कुछ सही चलने लगा तो you were somehow healing your बचपन? You were healing your generational trauma that you got so that you don't pass on to your kids. Were you healing कि तुम जो achieve नहीं कर पाई वो अब कर रही हो? तो एक वो sense of satisfaction आया था? आया था. ये स्टार्ट करते वक्त अगर सब
फर्स्ट ईयर नहीं था उतना खास. 2 साल Founder के बाद वाला you were tag almost थोड़ा था. 30 तब हाँ, तक. 30 when I was exactly 30 I started my company. फ्लॉप शो होना ही था, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, पता नहीं बिजनेस कैसे करना है, बस वो फाउंडर वाला टैग फाउंडर करके फिर बाद में मैंने डुबा दिया खुद को. बाद में जब जैसे उठी ना मैं, उसके बाद वी बिल्ट इट सो स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह कि या यू कैन सी वेयर वी आर राइट नाउ. बट 2 साल लगे मेरे को, 2-2.5 साल उसके, जब मैंने प्रॉपरली अपने आप को थोड़ा इनकम मैंने अच्छा कमाना शुरू किया उसके बाद, तब मुझे ऐसा लगा. Did you feel कि सेल्फ रिफ्लेक्शन उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट था? हर फेज में इम्पोर्टेंट है. काफ़ी बार आई गेट कैरिड अवे. सच्चाई से भागते हो? नहीं, अभी नहीं. पहले पहले बहुत एंड वो बोलते हैं ना, सच्चाई से भागना, लोगों का फिर भी उतना क्या बोल सकते हैं उसको, प्यार की इतनी ज़रूरत है ना. आई फील उनको मैं प्लीज़ करने में शुरू हो जाती हूँ, उनको जो अच्छा लगा वो करना शुरू कर और दिया. खुद हाँ, की खुद चीजें को, हाँ, साइड सेल्फ करके. रिस्पेक्ट को साइड में कबाड़े में डाल के आई यूज टू डू ऑल ऑफ दैट क्रैप थिंग्स. फिर मेरे को रियलाइज हुआ वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. So for me, I have done couple of things in my 30s. Reshma, I have become closer to Allah, very close to my husband. I started working on the relationship. I'm trying to be a good mom. I'm sure I'm trying my level best to do everything. But the ideal mom I want to be, I'm not yet there, which I am trying to work upon. I have tried to become financially independent. This is the important thing. I have learned to say no. मैं नहीं करने वाली. आप आओगे प्यार मोहब्बत से भी बात करोगे, आयशा ये करना है, ये ऐसा है, आई एम लाइक बहुत अच्छा है बट नो. आई हैव लर्न 50 ways ऑफ सेइंग नो, 50 शेड्स ऑफ नो. तो वो सीखा है मैंने. और ये वाला बोलते हैं ना कि अपने को प्रायोरिटाइज करना सीखा है. किसी ने सिखाया है ये सब कि खुद नहीं, सीखते हो? सेल्फ रिफ्लेक्शन लाइक यू सेड. आई स्टार्टेड द मोमेंट आई स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर टू अल्लाह. से मैं प्रेयर मैट पे बैठना शुरू हो गई ना, मैं तहज्जुद पढ़ना शुरू करी, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द डोर स्टार्टेड ओपनिंग, दैट इनर हीलिंग, दैट अनहील्ड, द चाइल्डहुड ट्रॉमा, सारा कुछ हील होना शुरू हो गया. सो God, I think, has been very kind to me. He showed me the way. I am very modern. Maybe I don't show or demonstrate myself as that extremely religious person, but I'm very, very spiritual. I mean, like, बोल सकते हैं वही है अभी. So I know what you mean, Aisha. Same for me. Honestly, I follow Islam as well. For maximum year of my life, okay, while growing up, I have, so basically you said I'm August, so ये सारे Leo करते रहते, So I do have a lot of characteristics which is given for the August kids. I am very rebellious. I've grown up being a tomboy, as you rightly figured out. मैं बहुत ज़िद्दी थी. मेरे पेरेंट्स ने ना मौलाना जी को घर पे बुला के पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, मैंने किया नहीं है. Okay. What happened is right before COVID, my dad, he used to work here and पूरी कंपनी डूब गई. एंड काफ़ी बहुत, मतलब डैड जॉब करते थे बट उनको 1.5 साल की सैलरी नहीं मिली. उसी साल मेरी सिस्टर एजुकेशन के लिए गई, उसी साल पे मेरी शादी हुई एंड बात चल रही थी वगैरह. सो इन ऑल ऑफ दिस तब तक मैंने कभी प्रे नहीं किया था, मुझे आता ही नहीं था. ठीक है, एक कभी भी नहीं. आई टोल्ड माई डैड आई वॉन्ट टू लर्न बिकॉज वन डे विदाउट प्रेइंग, okay, I just went on the mat and I cried my heart out. And that was the day when I realized कि सिर्फ इतना मांगने से अगर तुम्हारी चीज़ें पूरी हो रही है, तो अगर उसके पास और मांगोगे तो कितना होगा. Since then I always say this to people, even if you don't follow Islam, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हें जो भी फॉलो करना है, you need to look at someone or something that's higher energy than you. Absolutely. The day you start doing this, कि आपको एक वो फेथ जो बोलते हैं ना, वो दिखाई नहीं देता फेथ, बट यू नो देयर इज समथिंग और समवन अबव यू एंड यू लुक अप टू दैट पर्सन, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई हाँ ठीक है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो जाएगा. तवक्कुल, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड. So faith is and spirituality is something that genuinely happens once you turn 30s में. I think so ना. उसके पहले कॉलेज में है, सब किसी को पता नहीं है क्या चल रहा है, शादी हो रही है पता नहीं है, फिगरिंग आउट. जब लाइफ स्ट्राइक करती है ना 30s में, जब वो सीरियसनेस आता है ना, तब स्पिरिचुअलिज्म आता है. जब रिलीजन के पास आप ज्यादा करीब आते हो, तब लोग पूजा करते, तब लोग नमाज पढ़ते. हाँ, I would agree. And this part of life
is so important. Yes. वो 5 मिनट आप नमाज पढ़ लो या 5 मिनट जो पूजा कर रहे हो वो पूजा कर लो. It is so important. It is. It is. And the day you start doing that, lot of things start falling in place because वो आपने अपना प्रॉब्लम किसी और को दे दिया. Absolutely. Absolutely. You know, I don't think you should have that much of मेरे को मेरा डर भी वही है, पता है रेशमा, 30s में मैंने वो चीज़ सीखी है. मुझे डर लगता है इमोशनल अटैचमेंट से, क्योंकि इवन स्पेशली विद पीपल वो ड्रग से भी ज़्यादा खतरनाक है. मेरे को ऐसा लगता है यू कैन तुम खुद को तबाह भी कर सकते हो उस चक्कर में, बिकॉज यू लूज योर आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्लीज दैट पर्सन, यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ, यू विल गो टू द एक्सट्रीम लेंस. मैं वो इंसान हूँ, तो इसलिए मैंने खुद को लोगों से बहुत दूर रखा But है you इस know, I चीज़ can से. relate to this, Aisha. I'll tell you what, if your relationship with your partner is not great, that is when इमोशनली अटैच अगर आप किसी दोस्त से हो जाते हो ना, तब वो बहुत दुखता है. Yeah. बट अगर आज मेरा हस्बैंड ही मेरा सब कुछ है, मेरे लिए दोस्त भी है, जो लॉट ऑफ पीपल विल टेक इट नेगेटिवली कि Yes. हस्बैंड के साथ ही घूमते रहते, बट आई डोंट केयर. Yes. अगर मेरा हस्बैंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे लिए सबसे पहले आता है. आई विल नेवर गेट इमोशनली अटैच्ड टू एनीवन. व्हेन यू हैव दैट वॉइड फीलिंग, व्हेन यू हैव दैट स्पेस इन योर हार्ट कि मेरे को वो इमोशनली नहीं मिल रहा है, तब जाके आप इमोशनल अटैचमेंट अपने दोस्तों में पाते हो. Many of them they say no, मेरे को यार ये हस्बैंड बच्चों को छोड़ के निकलना है. You know, you won't hear me Exactly, saying that, never. and I'm so happy for you. Yeah. Reshma, this thing, if you can take an advice from me, I'm telling you, this is going to save you from a lot of trauma. Because ये जो दोस्तों के साथ हैंग आउट वगैरह करना होता है, मैं नहीं करती. मेरे पास मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड या वो ऐसे सर्कल में किसी को नहीं रखा है कि मैं किसी के साथ रैंडमली चाय कॉफी, यही डर है मुझे इमोशनल But then अटैचमेंट Aisha, का. you also मुझे need सुकून नहीं मिलता No, वैसे. but Aisha, there is also another part. Maybe you did not meet the right people. You know, the people I met were the nicest. They were nice to everyone. मेरा ये एक फंडा है कि sometimes I may be wrong, but ये बंदे लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं, उनको भी अच्छा कर रहे हैं, लोग उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं. तो somewhere something must have gone But wrong है ना, with me only, कुछ no? रिश्ते नहीं, I feel कुछ रिश्ते मतलब के लिए नहीं होते. मेरे लिए, like you know, I will tell you. So while growing up, मुझे ना कब कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो मुझे एडवाइस दे सके. हाँ. अब 30s में मैं ऐसे आ गई, और मैं ना लड़कों के साथ ज़्यादा घूमती थी. मेरे सारे दोस्त लड़के थे, मेरे पेरेंट्स भी उनको जानते हैं. 30s में आने के बाद है ना ऐसा हो गया, मुझे लड़कियां दोस्त ज़्यादा चाहिए, और ऐसे चाहिए कि मैं बिचिंग करूँ, मैं गॉसिप करूँ तो सुन. हाँ. मेरे को Okay, तुझसे okay. एडवाइस नहीं चाहिए. तो ये रिलेशनशिप बस एक रिलैक्स करने के लिए. समझा. इमोशनल अटैचमेंट कभी नहीं होने वाला, बिकॉज आई डोंट हैव दैट वॉइड स्पेस इन मी. कल को अगर मैं आपसे हैंग आउट भी करने लगूँ इंशाल्लाह, या हम लोग कभी मिल रहे 1 महीने में एक आध बार कॉफी पे, आई नो इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दिस चेंजेस हैपन ओनली इन माई 30s. इट इज़ गुड यू आर हैविंग दैट थिंग, बिकॉज मेरा शायद ये भी हो सकता है ना कि मेरा निकल गया वो फेज पूरा. यू नो, आई डोंट फील लाइक हैंगिंग आउट विद पीपल, एंड मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने से आई डू अ लॉट ऑफ सोशल गैदरिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो मेरा उसमें निकलता आता है. दिस इज वन थिंग. हाँ, उसमें निकल जाता है मेरा, मेरे को उसमें सुकून आ जाता है हमारे लोगों से मिलने से. बट वो बोलते हैं ना, मेरे को अभी चिल करने के लिए इन लोगों के साथ जाके कॉफी पीना है, वैसा नहीं है. बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग आई एम दैट जॉब. सॉर्टेड. Because your job demands that, your work demands that. तो मुझे लेकिन अच्छा लगता है वो चीज़. जो मैं मेरी लड़कियों से मिलती हूँ ना, वो जो गैदरिंग्स वगैरह करते हैं, यू कैन आस्क द वाइब इज एंटायरली डिफरेंट इन दैट रूम. दैट इज समथिंग आई डू फॉर माई वर्क, बट दैट्स समथिंग आई लव. बट ये जो है ना, मैं जो बोल रही हूँ कि मेरे को सुकून के लिए मैं जाके मेरे दोस्तों के साथ हैंग आउट करती हूँ, वो Because you have your partner. I have my partner. Exactly. You got my point. And that's it. Yes, that's it. I have lived my life. I have learned to keep my circle very small. The larger the circle and no quality in that, then you're done. Because तुम्हारा काम हैम्पर करता है, तुम्हारी फैमिली हैम्पर करती है, फिर सर्कल इज़ नॉट गुड. आई हैव लर्न दैट बिग टाइम. इसलिए मुझे और भी ज़्यादा होता है कि मैं जिन में भी आई इन्वेस्ट इन माई कम्युनिटी, आई इन्वेस्ट इन माई रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड, माई चैरिटेबल वर्क जो भी मैं करती हूँ, मेरे बिजनेसिस पे मैं कर लूँगी, मेरा इन्वेस्टमेंट बराबर से है. बट अगर मैंने ऐसे लोगों को इनसाइड सर्कल में डाल दिया who are going to destroy my peace of mind, play around with my mind, that is going to destroy everything, my creativity at work, my फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो भी, बिकॉज मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा कैसा पैसे कैसे घर पे आएंगे, एंड देन इट डिस्ट्रॉयज दी घर का एनवायरनमेंट भी. सो मैंने बहुत बार देखा है, स्पेशली एवरी फेज ऑफ माई लाइफ एज आई वॉज ग्रोइंग आफ्टर बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, बिजनेसेस में अलग अलग लोगों के साथ मैं हैंग आउट करती थी. आई वुड नॉट से नो, बट आई हैव सीन दैट दे हैव लिटरली, एज दे लेफ्ट माई लाइफ, दे हैव लेफ्ट दैट mark, a dirty mark in my life. They have destroyed things, you know, which because मैंने उनको अलाउ किया था वो करने के लिए मेरी लाइफ में.
सो उसके बाद आई थिंक आई हैव लर्न कि कैसे मैंने चीज़ों को सेग्रीगेट करना है. आई थिंक द मोस्ट वांटेड इन माई क्राउड, इन माई कम्युनिटी, एंड वेर एवर आई गो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं लोगों से प्यार मोहब्बत से रहूँ. बस वो एक है कि आप उस सर्कल में नहीं आ सकते जहाँ मेरा शौहर है, So उसके साथ basically, इम्पोर्टेंट नहीं है. like in your 30s, it is so important आप no बोलना सीखो. हाँ, ठीक है. When to say no to whom and या एक्स्ट्रा भी करना no problem, but ना बोलना सबसे पहले सीखो. इम्पोर्टेंट है. It is so important to also protect your energies. एब्सोल्युटली. Like if I'm feeling completely drained after meeting you for the first time, I will never meet you for the second time. True. It is so important to have that boundary, that Yes, line. yes, Financial security and freedom is important. important Even है. as a woman, it is so important that if you are earning, कि आपकी अपनी अलग से saving हो. Yes, yes. कल हस्बैंड को ज़रूरत पड़े या कुछ भी आपको. XYZ, आपकी खुद की फैमिली को ज़रूरत हाँ, पड़े, हाँ, हाँ. आपको किसी के पास पैसे मांगने ना पड़े. Mm, कल आपके बच्चों को पैसे की ज़रूरत पड़े, आपके हस्बैंड से भी मांगने ना पड़े. true. It is so important. Women who come get their salaries and give 100% to their husbands, and अगर husband financially manage नहीं कर पा रहा है, and it is हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? Men also Absolutely. don't manage money Yes, financially yes, well. yes, yes. तो वो दोनों डूबोगे. So इसीलिए true. it's so important कि आपका वो financially secure. And the last thing I feel, knowing about your body and your hormones becomes even more important in your 30s. Yes, I've started learning that big time. If you have seen, I don't know, stories देखते हो या नहीं, I started that मैं genuinely time निकाल रही हूँ, और मैं जब तक मैं खुद कर रही हूँ ना, एक point हो जाता है कभी मेरा आज मन नहीं कर रहा है, तो मैंने लोगों को ये कर लिया, हायर कर लिया कि यू आर गोइंग टू हेल्प मी कीप माई माइंड एंड माई बॉडी इन प्लेस. सो वर्कआउट करना शुरू कर दिया, अभी आर्ट थेरेपी स्टार्ट कर दी है मैंने. मैं खुद के लिए, मैं हस्बैंड के साथ मोस्टली करती हूँ, इज़ माई थेरेपी. ऑनेस्टली सो मच ऑफ हस्बैंड चल रहा है बिकॉज आई थिंक माई लाइफ, ही चेंज्ड माई लाइफ. Revolves around him. आई एम बिकॉज ऑफ हिम. आज के दिन मैं यहाँ हूँ बिकॉज ऑफ हिम. सो इफ आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज नेम at least half of the time, then I am not telling the truth to you. And also, Aisha, I feel like lot of people say that you're obsessed with your husband. मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि तेरा सैटरडे संडे मतलब शूट पे जाएगा, हस्बैंड के साथ जाएगा, शूट पे जाएगा, हस्बैंड. मैंने कहा भाई मेरे को नहीं होने वाला. अल्हम्दुलिल्लाह. I will tell you, but there are two cases in this. There are women who are madly in love with their husbands, and husband आपको इतना completely drain कर लेता है, और वो लड़की जीना भूल जाती है, और उसके लिए हस्बैंड के अलावा कुछ नहीं होता. हाँ. वो लड़का उसे, अगर सपोज इवन इन दिस केस वो लड़की अगर अपना रिलेशनशिप, अपना कुछ गोल सेट करना चाहती है, तो द हस्बैंड बेला फुसला के उसके Yes. नहीं करने देता. Yes. But there is also a different type obsession with husband, wherein you are in love with your husband, but that man will give you as much support as you need, Yes. will give you as much freedom as you need, and tell you what's right and what's wrong. Absolutely. Even if he is not somebody who is so actively on social media, he's there behind your back. Yes. कि अगर तुम्हें कुछ advice चाहिए तो he's there. He's there to manage everything. Absolutely. He's never going to ask you कि रेशमा तुम्हारे इस month की salary कहाँ गई है. And this is the kind of obsession, it's not even the right term, but this is the kind of relationship that You need goes to very have. far. Yes. And you need to have. Yes. And you can't build that in one day. Yes. Imagine years. I think अभी हमारा 16, 17 years हो exactly. गया है. It takes years. It takes lot of realization. But वो दोनों में चाह होनी चाहिए. Sometimes Yes. I will give 100%, he will give 0. Sometimes he gives 100, I give 0. Absolutely. It's never 50-50. It is It's never never 50. 50-50. I would agree. There are times maybe it would be, but majority of the time it is 100 and 0 only. I am not doing great, and maybe I'm the hyper one. Calm का stress मैंने यहाँ पे निकाल दिया. If he's going to be calm and he's going to help me, support me that time, तो फिर वो balance हो गया. फिर it is just like that. Like you said, it is 100 and 0 most of the time. तो वहाँ से effort, because we are trying to make it work. It is 80-20 also. Yes. It's never 50-50. It is never 50-50. Let's say that it's never 50-50. Yes, it is not. So that's what, again, it takes efforts from both the ends to make it work. That's what we are trying to say. The relationship we have built with our husbands, maybe because it is mutual, and secondly, it is because both are putting efforts from both the ends. And we are not saying that my husband is the most zen person. I'm not saying I'm the best wife in the world. It's just that we have tried working it out together and started finding peace in each other. Yeah. That's it. Aisha, why this topic was so important for me? I was doing my research, and
right after COVID, what happened is COVID में ना बहुत सारे लोगों के business चल गए. Yeah. And at early age लोग अपना घर लेने लगे. शादी होने के तुरंत बाद Mercedes में घूम रहे हैं, especially in India में भी और Yes, UAE में भी, yes. everywhere. 2023 में lot of people, like the searches when we Google search ना, around 200% it went up between the age of 28 to 35 कि am I behind in life? People started searching this because एक जो normal corporate job कर रहे, जो extra business नहीं कर रहे, समझा. women or men both between 28 to 35 they started researching कि am I behind in life because of social media pressure. Yeah. And you know, it is also important to tell people it is okay अगर आपका career late start हो रहा है. True. It is okay if your finances and savings are late. It is okay if you afford a house at 45 and not 30. It is Absolutely. so okay. It is. And Reshma, good you pointed that out. Social media का ना दो साइड है, pros and cons. And जैसे ये रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह, ये जो प्यार का जो उन्होंने मीनिंग चेंज किया है ना, जैसे हम बोल रहे हैं हैंगिंग आउट विद हस्बैंड, मे बी क्वालिटी टाइम, ये जो बड़े बड़े बुके देखे, बड़े बड़े कार्ड्स देखे, यू नो दे शो कि दिस इज द काइंड ऑफ लव. एंड आई हैव सीन सम रील्स, ऐसे होना चाहिए हस्बैंड, शेयर इट विद योर I वाइफ. have somebody I know कहती है कि अगर मुझे 999 रोजेस दे के प्रपोज नहीं किया तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी. हाय. एक ने मुझे कहा कि मुझे XYZ कैरेट डायमंड्स का अगर रिंग नहीं मिला तो आई विल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल. I think I'm glad I have moved from that list. Yeah, because I still talk. Like I Yeah. have women around me Of who are course, still of course, single, of who are course. still figuring out life, who are still younger than me, and like they are doing great in careers, but the expectations are Yes. shit. Because it's quite unrealistic. कितना टाइम तुम 999 का तुम लाके दे दोगे? Exactly. You know, एक दिन नहीं होता है. अभी शायद मेरे हस्बैंड, मेरा भी वैसा ही था. He started getting bouquets. एक दो बार जाके एक एक रोज लेके आए. And I'm like, what is wrong with you करके. Then I saw the efforts. इतना धूप है, बंदा 10-10 बैग्स ग्रोसरी का उठा के लाया, उसमें एक रोज मेरे लिए लाया. Imagine he thought of me while taking that. Exactly. That's it. And ये वाला ना, मुझे जो लगता है कि शायद कॉम्प्लिकेशंस बहुत होने वाले हैं आगे जाके रिलेशनशिप्स में. इसीलिए तो सब हो रहे हैं, सबके डिलेड फर्स्ट हो रहे हैं. यू नो लाइक ओके आपकी शादी काफ़ी जल्दी हो गई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बट आइडियली इंडिया में 23 से 26 के बीच में शादी होती थी. हाँ. करेक्ट. अब आप देखोगे सारे 30s 30s में 32. पुश हो गए हैं. हाँ हाँ. बायोलॉजिकल क्लॉक आपका जा रहा है, स्पेशली फॉर वुमेन इट्स इवन मोर प्रेशराइज्ड. Yes. बिकॉज है ना, एक चीज आई फॉरगॉट, 30s के बाद में व्हाट हैज स्टार्टेड टू हैपन इज आई डोंट टेक समबडी शिट एनी मोर. और है ना, आई एम ग्लैड दैट आई गॉट मैरिड अर्ली. द रीजन बीइंग कि मेरी अगर हिस्ट्री चेक करो बिहेवियर की, तो आई केप्ट ऑन बिकमिंग वेरी रिबेलियस. अब तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. हाँ. मैं बहुत केयरलेस होते जाती रही. अगर मैं उस इंसान को उस टाइम पे नहीं मिलती, आज मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती. मैं इतनी जिद्दी और मैं इतनी इनएडजस्टिंग पर्सन हूँ ना जिंदगी में, मैं नहीं करूँगी. मेरा बैग यहाँ पड़ा रहेगा, तेरे को हटाना है तो हटा ले, मैं तो नहीं हटाती. I am that person. I I am know, I literally could get that person. vibe. हाँ, I don't care. मतलब this is my comfort. This Yes, is whatever. yes. Because I'm same. हाँ, I I'm used to be like that. correct. So I am that person, and this is also happening after 30s. You become so strong-headed. You don't want to listen to people. Yeah. मतलब मैं 30 साल की हूँ यार, अब मुझे क्या बोल रहे हो? Mm. And that is also why I feel it's okay to get married early. It's okay to have arranged marriage because you will grow together. You Yeah. will figure out. हाँ, अगर कोई डाउरी का है, मारपीट कर रहे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो that's a different thing. You know, again सबका प्रोज एंड कॉन्स जैसा बोलते हैं ना रेशमा. ऐसे तुमने जैसे बोला, अगर सब कुछ अच्छा है ना, उस वक्त शादी करके बाद में सेटल हो गया अच्छा है. बट अगर उस वाकई में वो बंदा जो मिला है तुमको अच्छा नहीं है, तो वो अलग बात है. हाँ, तो वो पर है भी ना, है. आप है ना छोटी छोटी बातों को निकाल के झगड़ा करना, हाँ. वो गलत है. हाँ. लॉट ऑफ विमेन ना, दे स्टार्ट पिकिंग अप थिंग्स. अरेंज मैरिज हुआ है मेरा, मुझे तो ऐसे ही चाहिए. हाँ. प्यार नहीं है मुझे तुमसे, मेरा तो अरेंज मैरिज हुआ. हाँ. वो गलत होता है. हाँ, अगर लड़का मारपीट कर रहा है, अगर हाँ. लड़का डाउरी हाँ, मांग रहा है, हाँ, हाँ. तो वो बहुत ही अलग सिचुएशन हो गई. Absolutely. तो तभी तो वेरी सिंपल, डोंट टेक हिज बुलशिट आल्सो भाई. हाँ. भले 6 महीने Self शादी respect के हो है. गए या 5 साल हो गए, गेट लॉस्ट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, वॉक अवे. Self respect is very important. हाँ, and having that clarity even in a relationship. Yes. blindly love is one thing, but वो blindly love के साथ clarity होना बहुत important है यार. Yes. वो धुंधला अंधापन नहीं हो सकता. हाँ, You हाँ. need to have that clarity. हाँ. It's the base. And that is what, you know, if you keep on reflecting
आई थिंक तुमको सेल्फ रिफ्लेक्शन जब तुम करते रहोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि ये जो चल रहा है ये वाकई सेल्फ रिस्पेक्ट पे हार्म कर रहा है या फिर इट इज समथिंग कॉमन दैट कैन बी सॉर्टेड आउट इन सम टाइम, यू नो, बिकॉज उस चीज़ का भी क्लैरिटी नहीं होता है, हर चीज़ को लोग सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेके जाते हैं. इट्स अगेन अ लॉट ऑफ क्या बोल सकते हैं उनको, सीखने की ज़रूरत है, एंड इट इज़ नॉन स्टॉप सीखना रिलेशनशिप में. I cannot say कि we have achieved everything in life right now, although it's 16-17 years of relationship that we have, but then again it is like सीख रहे रोज. Yeah, आज yeah, जैसा आज आयशा का अभी जैसे मेरे को 3-4 साल पहले इतना हार्मोनल चेंज नहीं था, तो मैं हमेशा 24/7 हंसते रहने का, 24/7 हैप्पी. अभी शायद आई एम नॉट 24/7 हैप्पी बिकॉज आई हैव दैट मूड स्विंग्स गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ माई हार्मोनल चेंजेस. सो ही इज लर्निंग विथ मी कि ये चेंज हो रहा है, इसके हिसाब से ऐसे करना है. मुझे चेंज होना है, उनका जॉब चेंज हो गया, उनका वर्क अलग चेंज हो गया, बिकॉज ही इज नॉट इन टू माई बिजनेस एंटायरली. नो, हम दोनों ने अपना काम अलग रख दिया. तुम हमारा काम ये है, ही इज इन टू अन प्रॉपर 9 to 5 जॉब, आई एम इन टू प्रॉपर बिजनेस थिंग. ही इज़ नॉन सोशल, आई एम एक्सट्रीमली सोशल. तो वो बोलते ना कि पूरा अलग है, लेकिन हम लोगों ने अपना बाउंड्रीज ड्रॉ किया. दिस इज वॉट आई विल ब्रिंग टू द टेबल, दिस इज वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल, एंड दिस इज वेयर वी बोथ विल शेक हैंड्स. And also, Aisha, just to add another perception, people think that by 30s you need to have everything figured out. But I don't think that's right. true. Even if somebody is not finding a potential partner, it is okay. पर हाँ, आप दरवाजे मत बंद कर दो. हाँ, आप भले ही टाइम ले लो अपना, देखते रहो. If you want to settle, then if you want to stay single, it's all your choice, and I totally respect that as well. absolutely. Second thing, it is also okay if you're not 100% financially secure, as long as you're trying towards it. Absolutely. Just because you're not financially secure, ऐसा नहीं कि मैं भूल जाऊँ सब कुछ. Just try towards it. It is okay if you don't buy a house. Try towards it. Yeah. सपने देखने में कोई problem कोई नहीं है. प्रॉब्लम नहीं है. Having a strong spiritual and faith, again as we discussed, super important. So even if you have delayed firsts of everything, it is still okay. It is Life still खत्म okay. नहीं हो रही 30s में. It's much more beautiful. I'll tell you one more thing. मेरे दोस्त जैसे, because I have that kind of circle, I hardly have people from my 30s. Now you are one, and there are 2-3 more, I believe. But जो भी मेरे दोस्त हैं ना, उसमें काफ़ी लोगों ने लास्ट ईयर, एक ने 52 के एज में she started a business. I have, because I have that women community as well. तो इससे क्या हो रहा है, मैंने हर रोज देखती हूँ मैं कि 40 के बाद, 45 के बाद हमारे लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं. Exactly. तो वो टाइमलाइन तो पे कुछ मत भी नहीं है. देखो. हाँ. 30s कोई बड़ी बात बड़ी नहीं है. बात शादी नहीं. 35 में भी होगी तो ओके. Absolutely. जिसको मिल गया, जिसकी हो गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हाँ. जॉब भी बहुत डिलेज होते हैं, इट्स ओके. बट होगा. It's just that you have to work towards it. True. And I think in your 30s you get that better mental clarity, True. जिसकी वजह से आपके डिसीजंस भी अच्छे हो सकते हैं. बहुत अच्छे होते हैं. जो बेवकूफ़ों वाले डिसीजन लिए वो आप नहीं लोगे. मैं तो जब I was called auntie when I was 18 years old because I got married. मम्मी शादी हो गई तो मेरे को कौन कितने साल का बच्चा मेरे को आंटी बुला रहा है, 20 साल का बच्चा. जालिम. उस दिन सोसाइटी में मुझे किसी ने आंटी बोली, मैं कहती आंटी होगी तेरी माँ. आंटी बोलते हैं. फिर अभी नहीं बुलाते. अब मेरे बच्चों के जो दोस्त हैं वो लोग, बिकॉज दे डोंट कॉल आंटी अंकल्स एंड ऑल, नो, फर्स्ट नेम बेसिस पे रहते हैं ये लोग सारे. तो ये लोग बुलाते हैं फर्स्ट नेम बेसिस में. I'm like, okay, I'm good with okay it. with that. Yeah. Whatever pleases them, Whatever honestly. pleases you. Yeah. So Aisha, I think it was great talking to you. Likewise. I love this. I think it's a great clarity for women who are still young, in their early 20s, late 20s, early 30s, still figuring out. सबकी लाइफ अलग होती है. Yes. And किसी को किसी के साथ compare नहीं करना. Absolutely. The main reason I thought that you are the perfect guest for this is because Aisha, we have different life of same age. Yes. And I thought that, वाह, मतलब दो अलग ऐसे परसेप्शन मिले हैं लोगों को कि ठीक है यार, सबकी अलग होती है. जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया आपको कुछ दिखा रहा है वो सही नहीं है. True. लोग है ना कपल रील्स डालते हैं बट रोज दरवाजा बंद होके झगड़ते हैं. हाँ, वो भी है. तो बहुत देखे यार, वो फोटो आएंगे ऐसे जा रहे हैं, हर साल 3 छुट्टियां ले रहे हैं, पर हमारे साथ बैठे रहेंगे ना तो वो एक केमिस्ट्री दिखता है कि जीरो केमिस्ट्री है. True. केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब दूर तक है. No, true, I agree. You feel that यार. एंड आपको दिखावा करने के लिए कुछ अचीव करना जरूरी नहीं है. मुझे अगर घर नहीं लेना, मैं नहीं लूंगी. I'm so glad Just you have because that I'm in clarity. 30s, I don't want to buy a house. I will not buy a house. I have Super. different plans. Yes. I don't want to have kids. I will not have a kid. If I want to have tomorrow, I will have tomorrow. True. It's my wish. It is. There's no deadline, and it's for everyone. Yes. There's
it's okay to have like a delayed of everything. Yes. Very simple. Absolutely, and I would agree with you. And अभी भी मेरे को तो वैसे भी जेंजी लगती है, मेरे को ऐसा लगता है मैं बुड्ढी अम्मा बैठी हूँ तुम्हारे सामने. ऐसा कुछ नहीं. Perhaps because of maybe the circle or maybe the environment I have Yeah. been. और मुझे तुम अभी भी जेंजी लग रही थी. नहीं. Throughout you were talking, I was like, अच्छा ऐसा चल रहा है, ऐसे चल रहा है. So it's different life, yeah. We're almost same age. That's what. एक साल का फर्क कुछ नहीं It's होता just है your यार. environment and because you started things a little Late. late. तो फिर बाद में not late, it's the right time. हाँ. It's not late. I was a little early. Not little, quite early. But And you आयशा started मेरे लिए normal. मैं सबसे ज्यादा जल्दी थी. मेरे दोस्तों में सबसे पहले शादी हो गई. हाँ 26. हाँ तो फिर भी तुम्हारा नॉर्मल के नीचे आ जाता है, लेकिन तुम्हारा जो सर्कल है उसमें थोड़ा जल्दी हो गया Yeah. तुम्हारा. तो बोलते हैं ना तुम्हारे में अभी भी वो जेंजी वाले ही ट्रेट्स दिखते हैं मेरे को. सो यू आर लाइक दैट एंड आई एम सो ग्लैड यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर थॉट्स Yeah. एट दिस एज. अगर मैं तुम्हारे जैसा होती, अगर मेरा लाइफ ऐसा नहीं होता और मैं तुम्हारे से स्टार्ट होती, आई वुड नॉट हैव दैट क्लैरिटी I ऑफ think it's थॉट. important. One thing that I forgot, that your partner, okay, as you said, कि you and your husband, you're poles apart. यस. You are somebody जिसको दुनिया जीत लेनी है. और आपके जो husband है वो ऐसे zen एकदम डजंट उनको हैव गोल्स. वो Can you believe? ठहराव जो होता है ना, हाँ. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है Yes. रिलेशनशिप He में. keeps me मुझे like that. भागना होता है. मतलब मैं भी हमेशा ना, मुझे ये करना है, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे ये करना है, मुझे डायरेक्टर बन जाना है. बट वो ठहराव मेरे हस्बैंड ने ब्रेक हाँ, मारते हैं हाँ, ना. हाँ, मैं हाँ. एक्सीलरेटर हूँ, वो मेरा ब्रेक है. वेरी हाँ, सिंपल. हाँ. That's how a good relationship works. Absolutely. And this is so important. If you are somebody who wants to fly, you need somebody who can stop you as well. Yes. And that balance can go very far. And that's why- Absolutely. Because we both have similar kind of even characteristic traits. I used to be a tomboy. I used to be that rebel person. मतलब लोगों को भाव नहीं देना, वो सारा मैंने सब कुछ किया and then I have reached this point. So बोलते हैं ना कि we've got that kind of a person in our life जो हमको थोड़ा सा ब्रेक संभाले. मारे. हाँ, ब्रेक बेटा मारे, बस हो बस हाँ. You won't believe my husband. मैंने बोला गोल क्या है? I'm happy with what I got. Yeah, This same. is what exactly he said. वो बोले how in the world you don't have goals and I have to push him to get his goals. And I'm like ये करते हैं हम लोग भाई. आयशा don't rush. तुम करो. I'm there. Yeah, मैं same. slow से करूँगा इसको. That is what he says, and I'm so happy that we are both having that clarity of life. alhamdulillah. And considering the people and the circle we are in, I mean, आजकल के ज़माने में उतना नहीं मिलता, and we are blessed to have that Yeah, kind yeah. of clarity I of always thoughts. say that. Alhamdulillah. But it's also because you and me compromised a lot. अगर आप compromise नहीं करोगे तो आपके husbands ऐसे नहीं होंगे. और अर्ली लाइफ में बहुत झेला भी है ना हाँ, हमने. same. बुलिंग झेला है, जो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तभी आप टॉम बॉय मैं क्यों बने हो? अरेंज मैरिज में अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप लेके जाने में मैंने झेला है. हम दोनों नहीं होते थे सेट. पर वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर अ वुमेन. आप कितना भी कह लो कि बोथ हैव टू कॉम्प्रोमाइज. यस, ही हैज टू. बट इनेट नेचर ऑफ द वुमेन इज टू कॉम्प्रोमाइज. एंड आपको कभी ना कभी वो चीज़ को ज़्यादा करना पड़ेगा आपके हस्बैंड से. Absolutely. You are always 50-50 while compromising, but sometimes you have to do that 70. So that थोड़ा बोलते हैं ना वो female तुमने has जो to बोला. compromise a lot more than men. Very simple. And that I really firmly believe in. हाँ, हमारे इसमें भी हो गया है. कभी एक फेज आता है मेरे को करना पड़ता है, कभी एक फेज आता है उनको करना पड़ता है. जैसे पर उनको अभी लड़कियों को खाना ज़्यादा ही पकाना करना पड़ता है. पड़ता है. मैं खाना भी अगर आप बनाती हूँ. ओवरऑल चेक करो ना अपना भी, women have to Majority compromise yes, a lot. majority yes, I would say that. And तुमने जो अपना बोला था ना पहले कि हस्बैंड के ऊपर ब्लाइंड लव, my mom was like that. No. Just the way तुमने वो जो फर्स्ट वाला हिस्सा बोला Because she था. got married even younger, she did not have that freedom. Yeah, और स्पेशली जब आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम आती है ना, तो थोड़ी सी क्लैरिटी वैसे भी आ जाती है. वैसे भी आ जब वो जाती है. औरत एक अपने हस्बैंड पे इतना कम्प्लीटली ब्लाइंडेड रहती है कि उसके पास खुद के कुछ ना गोल्स हैं, ना पैसे हैं, ना कुछ, तो वो लाइफ अलग, वो पेरेंट्स की लाइफ तो वो अलग ही अलग थी. ही है. वो I'm एकदम so अलग happy है. we are in this phase and Yeah. alhamdulillah. And it was honor being with you. Thank I you so told my much. child I'm going to your podcast. He asked me the podcast name. And then he searched for it online. I'm like, why would she do that to herself? बोला मेरे को. मैं बोली no, that is the confidence. I love Yeah. that. And that's why I said I'm going to her podcast. Mama, you don't go to podcast, he said. I said because I want to be there. And I'm so glad And he also called me. Fat Kid Show does not just mean कि just because I am overweight. It was always the idea कि whenever you look at like this fat, chubby, cute kid, you Cute. feel like they're happy.
They are. And that is exactly what I wanted to relate with this name. And you replicate the same. I'm so glad. Alhamdulillah. Thank you so much, Aisha. Thank you for so having me, much. Reshma, It and I was love you great. for everything you're doing Thank you and for so what. much for coming May and taking time you out. get everything in your Thank you life so and much. all I your wish you the wishes come true. same. I really wish you the same. Thank you so much. Thank you so much, guys, for watching this podcast. It was heart to heart talk. I hope कि आपको एक टेक अवे तो इस एपिसोड से ज़रूर मिला होगा. Do not forget to subscribe to my YouTube channel. Follow us on Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, JioSaavn, and I'm going to link all Aisha's social media and website link in the description box down below. And I'll see you next time with some more unfiltered gup shop with another guest. Until then, bye bye.